Welcome you all in this YouTube video, which is based on the chapter 2 Socialism in Europe and Russian Revolution, class 9th history. This is the first part of the chapter in which I will cover the socialism in Europe. In previous chapter, we came to know about the French Revolution, and in the same continuation, we are covering the European history of some more countries. So let's start a chapter. The following content we will cover in this chapter: the age of social change, liberals, radicals, conservatives, industries and social change, socialism in Europe, Robert Owen, Louis Blanc, Karl Marx, Frederick Engels, support for socialism, SDP, Labour Party in Britain and Social Party in France. These content we are covering in this video. Then Russian Revolution, economy and society, socialism in Russia, Russian Socialist Democratic Labour Party. This we are going to cover in the next part of the videos. Division of Bolsheviks and Mensheviks, then 1905 Revolution, Bloody Sunday, St. Petersburg, Father Gapon, elected Consultative Parliament of Duma, the First World War and the Russian Empire. Then we are going to cover the February Revolution in Petrograd event and effect, October Revolution events and their effect, the Civil War, making a socialist society, Stalin and collective farming and global influence. So let's start the introduction of the chapter. This lesson throws a light on the coming of socialism in Europe and the dramatic event that forced the ruling monarch Tsar Nicholas II to give up power. One can see how the ideals of socialism brought about Russian Revolution. इस चैप्टर में हम सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया और रशियन रिवोल्यूशन को कवर करेंगे. So let's start the part of socialism in Europe. The age of social change, the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the society. People were conservative, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. तो ये यूरोप के समाज की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे तीन प्रकार के लोग थे: कंजर्वेटिव थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे. और एक नया ग्रुप वहाँ पे ऐड होने ही वाला था जिसका नाम था सोशलिस्ट या सोशलिज्म. तो यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो यूरोप है, यहाँ पे तीन प्रकार की आइडियोलॉजीज़ जो थी वो डोमिनेट करती थी. रेडिकल्स जो कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, लिबरल्स जो कि सॉफ्ट हार्ट होते हैं, कंजर्वेटिव्स दोज हु डोंट वांट एनी चेंज इन देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. तो यूरोप का समाज इन तीन प्रकार के विचारधाराओं में बटा हुआ था. नाउ अंडरस्टैंड वन बाय वन different ideologies. Let's start from the liberals. So liberals wanted a nation which tolerated all religions. They were against the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted rights for individual. तो लिबरल जो थे उनकी ये तीन मान्यताएं थी कि स्टेट शुड रिलीजन को टॉलरेट करें सारे को सारे. दैन राइट्स फॉर इंडिविजुअल, अनकंट्रोल्ड पावर जो है डायनेस्टिक रूलर्स की उनको अपोज करते थे. दे वर लिबरल्स और उनको हम उदारवादी कह सकते हैं हिंदी में. And who were radicals? Radical wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population, and they dislike concentration of property in the hands of few, not the existence of private property. So these were radicals जो गवर्नमेंट को जो है मेजॉरिटी की बेसिस पे होनी चाहिए. एंड दे डिसलाइक कंसंट्रेशन, प्रॉपर्टी जो कुछ हाथों में हो ये वो उनको अच्छा नहीं लगता था. But they were somehow in favor of private property. Then they argued for an elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. They were not Democrats because they did not believe in the universal adult franchise. तो डेमोक्रेट्स जो कि लोकतंत्र के पक्ष में होते हैं और रेडिकल्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि रेडिकल्स जो है वो एडल्ट फ्रेंचाइज के पक्ष में नहीं होते हैं जबकि डेमोक्रेट्स होते हैं. तो ये उनका बेसिक फ़र्क है. देन कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? आफ्टर लिबरल एंड रेडिकल्स दे रेजिस्टेड चेंज. वो किसी प्रकार के बदलाव के पक्ष में नहीं होते. आफ्टर द रिवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट. तो कंजर्वेटिव एक प्रकार से अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में बड़ा विश्वास करते हैं और अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो कंजर्वेटिव्स थी.
So after understanding all these prevalent ideologies, let's come to the socialism, how it began in Europe. So let's start from the industries and social change. इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद समाज में एक प्रकार के बदलाव हुए थे, आइडियोलॉजीज़ में भी चेंजेस आए थे. सो ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो चाहते थे कि जो बेनिफिट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, औद्योगिकरण का, दैट शुड पास टू द वर्कर्स ऑल्सो. तो वो इसको एनकरेज कर रहे थे. सो दैट्स व्हाई दे वर एनकरेजिंग द एफर्ट्स of benefit of industrialization should be passed to the workers also. And it was also the beginning of the industrial revolution. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुई थी, औद्योगिकरण का आरंभ हुआ था, उस समय की बात है ये. मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस. लेकिन उस समय जो है महिलाओं और छोटे बच्चों को जो है वो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता, लो वेजेस पर, कम मजदूरी पर. सोशलिज्म इन यूरोप. नेक्स्ट फ्यू pages we will see how socialism popularized in Europe. Socialists had a different vision of the future. अब हम इसमें सोशलिज्म और सोशलिस्ट को समझेंगे. उनका फ्यूचर के लेके एक डिफरेंट विजन था, सोच थी. रॉबर्ट ओवेन जो है sought to build a cooperative community called New Harmony. Robert Owen sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. तो रॉबर्ट ओवेन ने जो है कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो अपने इलाके में शुरू किया, इंडियाना में. वो एक प्रकार का एक अलग ही उनका विजन था जो कि सोशलिज्म को लेके बनाया गया था. Then in France, Louis Blanc wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist एंटरप्राइजेस. कैपिटलिस्ट जो है एक प्रकार से प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या प्राइवेट इंडिविजुअल जो हैं वो बिजनेस ऑनर होते हैं, उनकी जगह पर वो कहते हैं कोऑपरेटिव्स हो. कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर किसी कंपनी को चलाते हैं, किसी फैक्ट्री के वो मालिक होते हैं, सारे के सारे उसी में काम करते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं. तो लुइस ब्लैंक जो है कहता है कि इंडियाना में जैसा हो वैसा यूरोप में भी होना चाहिए. Other than these things, socialists were against private property and saw it as the root of social evil. तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, जबकि रेडिकल जो थे वो पूरी प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है कुछ ही लोगों के हाथ में हो इसके खिलाफ हुआ करते थे. Some believed in cooperatives, some demanded that government must encourage cooperatives. कार्ल मार्क्स की बात करते हैं. कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल एडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल ने कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, वहाँ पर कुछ ही लोगों का अधिकार है और वर्कर्स जो है वहाँ पे एक्सप्लॉइट होते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल. एंड मार्क्स प्योरेस्ट थॉट जो था वो कैपिटलिज्म वुड बी रिप्लेस्ड by a socialistic collective where all were equal in ownership and reward of production. की फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो वो आपस में उनको रिवार्ड मिलना चाहिए उस चीज़ का, ना कि एक ही ऑनर जो है उस सारे प्रॉफिट को ले जाए. तो ये उनकी मान्यता थी. Marx believed that a socialist society would free the workers from capitalism. तो मार्क्स का ये मानना था कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वर्कर्स को कैपिटलिज्म से फ्री बनाएगी. दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और उन्होंने ऐड कर दिया इसको, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी. वर्कर्स इन जर्मनी एंड इंग्लैंड बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर लिविंग कंडीशंस, फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस. दे सेट अप फंड्स फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड राइट्स टू वोट. तो वर्कर्स ने एक प्रकार से जर्मनी और इंग्लैंड में एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिया था, और कार्ल मार्क्स का कहना था कि वर्कर्स को यूनाइट होना पड़ेगा इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के खिलाफ. और उसी की बेसिस पर जो है इंग्लैंड और जर्मनी में एसोसिएशन बनना शुरू हुई. एंड दे सेट अप फंड फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस. जो मुश्किल थे उनके लिए उन्होंने आर्थिक सहायता भी जुटा रहे थे. एंड दे वर डिमांडिंग रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स. उसमें वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा थे वर्कर्स के लिए, और राइट टू वोट भी उनके लिए मांग रहे थे वो. सो सोशलिज्म के लिए एक तरह से सपोर्ट जो था वो जारी हो रहा है जर्मनी और इंग्लैंड में. सपोर्ट फॉर सोशलिज्म हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में.
socialists formed an organization called Second International to spread socialist ideas. तो socialist ideas को पूरे संसार में फैलाने के लिए जो socialist थे उन्होंने Second International जो है करके एक organization फॉर्म की थी जो कि socialism को support करती थी. After that we will understand about the economy and society in the coming pages. And at that time European economy was totally depending on the agriculture, and somehow industries were also contributing. Society, I told you that it was divided on the four different kind of ideologies. Socialism was the new ideology which was spreading rapidly in Europe, and Germany and England have seen the rise of a number of socialist associations, those who are against the right to property. और रेडिकल जो है वो पूरी तरह से प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए जबकि सबके पास होनी चाहिए. डेमोक्रेट्स जो हैं और रेडिकल्स में फ़र्क क्या है, डेमोक्रेट्स राइट टू वोट के फेवर में होते हैं, लेकिन रेडिकल्स जो हैं वो सेलेक्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में होते हैं. तो आगे हम जो है रशियन रिवोल्यूशन जो है ये कवर करेंगे इसमें. इससे पहले हमने सोशलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है जो पार्ट है उसको हमने समझा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रशियन रिवोल्यूशन. दिस इज द पिक्चर ऑफ Tsar Nicholas in 1914. Tsar Nicholas was ruling over Russian Empire. आप उसका पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं. देन द रशियन रिवोल्यूशन, आने वाले जो पेजेस है उसमें हम रशियन रिवोल्यूशन को डिटेल्स से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि रशियन रिवोल्यूशन के कौन से कॉजेज़ थे, उसके क्या रिज़ल्ट निकले, कौन से लोग थे जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया. ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर in the coming pages. The Russian Revolution. The peasants had no respect for nobility, very unlike the French peasants. तो फ्रांस में अगर हमने देखा, हमने पहले चैप्टर पढ़ा ही है कि फ्रेंच जो peasants थे they respect the nobility, but in Russia the scene was sort of different. Russian peasants were the only peasants community which pooled their land and their commune divided. तो रशिया में पहले से एक प्रकार से कोऑपरेटिव सिस्टम चला आ रहा था कि वो लैंड को पूल करते थे, मतलब आपस में बांटते थे और इकट्ठा खेती करते थे, और जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन होती थी खेती से जो अनाज उगता था वो आपस में शेयर कर लेते थे. मैंने इस चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ. आप इसके साथ में NCERT बुक की जो चैप्टर है वो भी पढ़ेंगे. द रशियन पॉपुलेशन अबाउट 85% वर एन एग्रीकल्चरिस्ट. तो मतलब रशियन पॉपुलेशन का 85% जो पार्ट था दैट वर बेसिकली फार्मर्स. इंडस्ट्रीज वर बिगिन सेटअप विच वाज द मोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट. तो इंडस्ट्रीज जो थी दे वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप बट दे डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड. तो कहने का मतलब ये है कि वर्कर्स जो थे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड थे वहाँ पर. सो दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन, एंड वी कवर्ड द इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजीज ऑफ यूरोप लाइक रेडिकल, कंजर्वेटिव, डेमोक्रेट्स एंड सोशलिज्म, how it started and how it became popular among the countries of Europe. These things we came to know. Then I told you something about the Russia and Tsar Nicholas too, and how the society was there of Russia, where 85% people were basically farmers. तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है. इसके अलावा आपके लिए जो होम असाइनमेंट है उसमें कुछ क्वेश्चन है. पहले तो आपने 10 MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसके बेसिस पे टेस्ट रहेगा. देन आपको ये जो 5 आइडियोलॉजीज़ जो बताई हैं इनके बारे में आपने लिखना है. डिफाइन द फॉलोइंग, लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए, कंजर्वेटिव्स, इस प्रकार से आप लिखेंगे. देन यू विल राइट ए नोट ऑन द रशियन सोसाइटी, उसके ऊपर लिखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस जो रशियन सोसाइटी थी वहाँ पर. देन यू विल राइट अबाउट डिफरेंट सपोर्टर्स ऑफ सोशलिज्म लाइक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स एक्सेट्रा. तो ये 4 क्वेश्चन है. इसके साथ में आप मैप भी जो है लगाएंगे
जिन भी कंट्रीज़ का नाम इस चैप्टर में मेंशन किया गया है उन कंट्रीज़ को आप उस मैप में लोकेट करेंगे, जैसे रशिया हो गया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा। एंड बाकी जो इस चैप्टर की डिटेल्स हैं मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। वेलकम।